بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے، آصف سے، جادو سے، جنات سے، ہر قسم کی بندش سے نجات یعنی علاج، نجات کا سبب بنے گا، علاج کا سبب بنے گا۔ اس عمل سے، عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بےحد مجرب ہے، بہت آسان عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ اس عمل کو کریں۔ اس عمل سے میں نے بارہا بہت سی چیزیں، بہت جگہ پہ میں نے اس عمل کو آزمایا ہے اور میرے تجربے میں ہے، اور کئی لوگوں کا الحمدللہ اس سے میں نے کام کیا ہے، جو آج میں یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ اس عمل سے، عمل بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات صفات کے دو نام ہیں، ان دو نام کو پڑھنا ہے۔ ان دو نام کی برکت سے آپ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہو۔ کسی کے اندر بغض و عداوت پیدا کر سکتے ہو، کسی کے اندر آپس میں جدائی ڈال سکتے ہو، کسی کا آپس میں اگر طلاق کروانا مقصود ہے تو آپ وہاں پہ آپ طلاق کروا کر سکتے ہو، یا کسی دشمن کو سمجھانے کے باوجود اس کے بعد اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس سے انتقام لے سکتے ہو، اس کو ہلاک کر سکتے ہو، کسی کی زبان بندی کر سکتے ہو، کسی کا محبوب اگر دور ہے تو محبوب کو اپنے پاس بلا سکتے ہو، آپس میں اگر رنجش ہے تو رنجش کو ختم کر سکتے ہو، آپس میں اگر محبت پیدا کرنا ہے تو آپ محبت پیدا کر سکتے ہو۔ کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہے، جنات کے اثرات ہے، خبیث ارواح کے اثرات ہے، یا اور کوئی چڑیل کے، بھوت کے، ام الصبیان کے کیسے بھی اثرات ہے، تو آپ اس عمل سے اس چیز کو بھی کر سکتے ہو۔ اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو آپ کو اگر عامل بننا ہے تو آپ کو یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر عامل نہیں بننا ہے، اس میں دونوں طریقے میں بتاؤں گا۔ آپ اگر عامل نہیں بننا ہے، آپ کو صرف وقتی طور پہ کام لینا ہے، تو آپ اس سے صرف جو ہے جادو کے، جنات کے اور جو عصبی جو مسئلے ہیں، عصبی علامتیں ہیں جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ان کا ہی آپ کام کر سکتے ہو۔ اور اگر عامل بن جاتے ہو تو آپ اس سے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو، جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اور اس سے بھی اور بڑھ کر کے چیزیں آپ کر سکتے ہو، سمجھے؟ یعنی آپ جو اس عمل سے ہر کام لے سکتے ہو۔ تو اس میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں عامل بننے کا۔ بہتر ہے آپ عامل بن جاؤ۔ عامل بنو گے تو آپ اس سے بے شمار کام لے سکتے ہو، بے شمار کام، جس کی کوئی لسٹ نہیں ہے، جس کی کوئی فہرست نہیں ہے۔ جو اس عمل کو کرے گا وہ اس کی حقیقت سے، اس کی فضیلت سے وہ خود واقف ہوں گا۔ ابھی اس عمل کو آپ کو 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے، یعنی 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے۔ مطلب یعنی کیا ہے کہ جمعرات کا دن گزار کے، یعنی 9 چندی جمعہ پکڑ لو، 9 چندی جمعہ سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر 9 چندی جمعہ ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر 9 چندی جمعہ نہیں ملتی ہے تو عروج ماہ میں کسی بھی جمعہ کی شب سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر عروج ماہ میں بھی اگر نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ کسی بھی جمعہ سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہو۔ جمعہ کی شب سے ہی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بازار جانا ہے، بازار سے پہلے آپ کو ایک چراغ لے کے آنا ہے مٹی کا، وہ چراغ لے کے آ کر کے رکھو، اور رائی کا تیل، جو سرسوں کا تیل ہے نا، وہ تیل لے کے آ کر کے رکھو، اور ساتھ میں جو ہے ایک اچھی خوشبو، رائی کا تیل آپ کے حساب سے لے لو، پاؤ کلو، آدھا کلو، جتنا آپ کو لینا ہے آپ لے کر کے رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اچھی خوشبو والی عطر لینا ہے، اور بخور لینا ہے، لوبان کا لو یا عود کا لو یا سندل کا لو۔ اگر بخور نہیں لے سکتے تو کوئی اچھی اگربتی لے لو، لوبان کی لے لو یا سندل کی لے لو، یا جس میں سے اچھی خوشبو آتی ہو وہ اگربتی لے لو۔ یہ ساری چیزیں آپ کو عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو لے کے آ کر کے رکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ ساری چیزیں لے کے آ کر کے رکھ دی، پھر آپ کو جو ہے عمل کی تیاری کرنا ہے۔ اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے، نہ ہی پرہیز جلالی ہے، نہ ہی پرہیز جمالی ہے، کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ آپ بے جھجک عمل کرو، اس میں حصار بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر حصار کرو گے تو آپ کی سیفٹی کے لیے اچھا ہے، حصار کر لینا اچھی بات ہے۔ ہر عمل میں آپ حصار کر لیں تاکہ آپ کی سیفٹی فرسٹ ہے، آپ کی جان کی حفاظت پہلے ہونا چاہیے، سمجھے؟ بہترین عامل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سب میں پہلے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، بعد میں پھر دوسرے کام کرتا ہے۔ تو آپ پہلے اپنا جس گھر میں کر رہے ہو، نماز عشاء کے بعد اس گھر میں آ جاوے، ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے، اور جو ہے اس عمل کو 7 راتوں تک کے کرنا ہے۔ 7 راتوں تک کے آپ کو کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے۔ جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے۔ آپ کے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آجو باجو کوئی رہنا نہیں چاہیے، تنہائی میں عمل کرنا ہے۔ اور اس گھر میں اچھی خوشبو جلاؤ، اگربتی جلا لو، اور پھر اپنے جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو لگاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس عمل کو 7 راتوں تک کرنا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جب قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے تو پھر آپ کا حصار کریں۔ حصار کرنے کا طریقہ کیا؟ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے،
3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़े। फिर किसी चौक के ऊपर, कोयले के ऊपर या पेंसिल के ऊपर या मार्कर के ऊपर या जो है किसी नोकदार चीज़ के ऊपर या खीले के ऊपर, किसी के भी ऊपर आप दम करें, फूंक मारें और फिर जो है या अपनी शहादत की उंगली के ऊपर दम करे, फूंक मारे, फूंक मार करके खूब बड़ा अच्छा इशार लगाए, बड़ा दायरा लगाए और फिर उसके बाद जो है आपको उस दायरे में बैठ जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें अव्वल आखिर दरूद शरीफ नहीं है, डायरेक्ट आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है, इसको आपको पढ़ना है 1001 मरतबा। आप काउंटर ले लो, तस्बीह ले लो, आप जिस पे आसानी से गिन सके वो चीज़ आपको लेना है और पढ़ना शुरू करना है। क्या पढ़ना है? देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, या क़हारू या जब्बारू, या क़हार या जब्बार ऐसा भी पढ़ सकते हैं, या क़हारू या जब्बारू ऐसा भी पढ़ सकते हैं। अभी आपको जैसा मुनासिब लगे, जैसा आसान लगे आप वैसा पढ़ लो। 1001 मरतबा पढ़ना है, ये एक रात का अमल हो गया। इसी तरीके से आपको 7 रातों तक के इस अमल को करना है। जब आप 7 रात तक के आप इस अमल को कर लिए, फिर आप इस अमल के आमिल बन गए। 1001 मरतबा रोज़ पढ़ना है। हाँ, रोज़ रात में आपको 1001 मरतबा पढ़ना है, 7 रातों तक के आपको 1001 मरतबा पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपको 7 रातों तक के पढ़ना है। 7 रातों तक जब आपने पढ़ लिए, फिर आप इस अमल के आमिल बन गए। फिर आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है, कोई मरीज़ आ रहा है जिसके ऊपर जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है, खबीस अरवा के असरात है या कैसे किस्म के भी असरात हो, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको राई का तेल आपने जो लेके आ करके रखा है ना, और वो चिराग लेके आ करके रखा है ना मिट्टी का, तो आपको समय पहले वो राई का तेल अपने पास में रखना है और उस राई के तेल के ऊपर 1001 मरतबा या क़हारू पढ़ना है या जब्बारू पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो उस राई तेल के ऊपर फूंक मार दो, दम कर दो, राई के तेल के ऊपर फूंक मार दो, दम कर दो। फिर क्या करो करके कि वो जो चिराग जो आपने लाया है, वो मिट्टी का जो चिराग है ना, उसके अंदर जो है उस राई के तेल को डाल दो। उस राई का तेल को उस चिराग में डाल दो, उतना डालो जितना तेल उसमें आ सकता है आसानी के साथ। जब आपने तेल डाल दिया, फिर आपको एक वाइट कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़ लेना है, बिना हाशिए वाला, बिना लाइन वाला। उसके ऊपर यही सिफ़ाती नाम या क़हारू या जब्बारू को 21 मरतबा लिखना है और फिर ब्लैक स्याही से लिखना है, ब्लैक बॉल पेन से लिखना है 21 मरतबा। आप ब्लैक पेन से लिखे या मार्कर से लिखे, ब्लैक स्याही से ही लिखना है, ब्लैक स्याही से ही लिखना है और कोई दूसरी स्याही नहीं चलेगी। जब आपने लिख लिया 21 मरतबा या क़हारू या जब्बारू, फिर उसके नीचे आपको मकसद लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर से जादू के असरात ख़त्म हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर से जिन्नात के असरात ख़त्म हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर से खबीस अरवा के असरात ख़त्म हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर से चुड़ैल के, भूत के, आसेब के, जो भी असरात है, जो भी आपको लिखना है उसके नीचे उसका नाम लिखना है, उसकी माँ का नाम लिखना है और फिर नीचे मकसद लिख देना है। जब आपने ये लिख लिए, फिर आप इसको जो है फलीता बनाने आता है ना, जैसे फलीता बनाते हैं हम, उसको फलीता बनाओ, उसको अच्छी तावीज़ बनाओ और फिर उसके ऊपर रुई लपेट दो। रुई लपेट करके वो चिराग जो है ना, चिराग में आपने जो तेल डाला है, उस चिराग में इसको डुबो दो और उसको जो है उसकी लौ को जो आग लगा दो। उसकी लौ को जो है जब वो भीग जाएगा ना, वो तो भीग जाएगा, तो फिर वो तेल के ऊपर जो है आप उसको जो आपने लिखा है ना जिस पे 21 मरतबा, उस कागज़ के ऊपर, उस रुई के फलीते के ऊपर आप आग लगाओ। उसमें से जो आग निकलेगी ना, फिर उस पेशेंट को कहना है, उस मरीज़ को कहना है, मरीज़ हो या मरीज़ा हो, उसको आपको कहना है करके कि इसमें देखते रहे। जब वो उसकी लौ जो निकल रही है ना, जो आग निकल रही है, जो आपने जलाया है, जो रोशन किया है, तो उस आग में उसको, उसके अंदर के असरात उसको देखना शुरू हो जाएंगी। जो भी असरात हो उसके ऊपर वो चीज़ें उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और फिर जब उसको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी तो फिर वो उसको देखेंगी करके कि वो उसके अंदर जलना शुरू हो जाएंगी। और आपको भी इस अमल को, जब आप इस अमल के आमिल बन गए ना, तो आपको अगर किसी का भी चेक करना है, किसी को भी अगर इन चीज़ों से अगर निजात दिलानी है, तो आपको नमाज इशा के बाद ये आपको करना है और ये जुमेरात की रात में करना है। जो भी पेशेंट होगा आपका ऐसा, अगर जिसके ऊपर भी असरात है, तो जुमेरात की रात में आपको उसको ऐसा दिखाना है, ठीक है। और आपको अमल स्टार्ट करना है, जुम्मा की रात से अमल को स्टार्ट करना है। 7 दिन जब आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे, फिर आप 8वें दिन से आप किसी का भी इलाज कर सकते हो। कोई आसिबी मरीज़ हो, कोई जादू वाला मरीज़ हो, किसी के ऊपर बंदिश हो, किसी के कुछ मसले मसाइल हो, फिर 8वें दिन से आप जो है जिसका भी अगर इलाज करेंगे, तो जुमेरात की रात से ही आपको फलीता जलाना है, फलीते में जला करके उसको दिखाना है, ठीक है। और 1001 मरतबा जब भी पढ़ना है आपको,
फिर जो भी चीज़ रहेंगी वो उस फलीते में, उस तावीज़ में आ जाएंगी और उसमें जलना शुरू हो जाएंगी, और जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसको वो साफ़ और क्लियर दिखना शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो मरीज़ खुद बोलेगा करके क्या चीज़ हाजिर हुई है और क्या चीज़ हाजिर नहीं हुई। अमल बहुत ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है। और इसी तरीके से आपको अगर और कोई भी दूसरे भी काम लेना है, आपके जो भी मसले मसाइल है, दुश्मन का हो, बुग्स का हो, अदावत का हो, या किसी से अगर कुछ कर्ज निकालना हो, या किसी से अगर कुछ मसले मसाइल है, तो आपको इसी तरीके से 1001 मरतबा पढ़ना है और फिर 21 मरतबा ब्लैक स्याही से या कहारू या जब्बारू लिखना है, और फिर उसके नीचे फिर जो अपना मकसद लिख देना है, और फिर जो है कब्रिस्तान में दफन कर दो। फिर इंशाल्लाह आपका काम होना शुरू हो जाएगा। किसी से कर्ज निकालना है तो इसी तरीके से 1001 मरतबा पढ़ना है, और फिर जो है उसके नीचे जो है अपना नाम, अपनी माँ का नाम, और फिर नीचे मकसद लिख जाए, फ़ला बिन फ़ला, जो भी है आपका कर्ज़ देना है उसका नाम, उसकी माँ का नाम, फिर लिख देवे करके कि फ़ला बिन फ़ला मेरा कर्ज़ दे देवे। फिर किसी वज़न चीज़ के नीचे दबा दो, फिर वो आपका कर्ज़ देना शुरू हो जाएगा। किसी की ज़बान बंदी करना है तो उसके लिए भी ऐसा है, किसी को बीमार करना है तो उसी के लिए भी 2 पुरानी कब्रें हैं, पुरानी कब्रों के अंदर जा कर के दफना दो, समझे। लेकिन जहाँ तक हो सके इससे जायज़ काम लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है, जलाली नाम है, बहुत गर्म नाम है। अगर इससे अगर कोई गलत काम लेते हो तो आपके ऊपर भी उसके तासुरात और उसकी रुजत आपको पड़ सकती है। बस मेरा कहना यही है कि नूरानी अमल है तो नूरानी अमल से जितना हो सके जायज़ काम लो, आप नाजायज़ काम ना लो ताकि आप नुकसान ना उठाओ। और इसके अंदर एक वो मसला ये है करके कि कर्ज़ के लिए मैंने बताया ना, किसी वज़न चीज़ के नीचे दबाना है, तो आप वज़न चीज़ के नीचे नहीं दबावे, क्योंकि अल्लाह का ज़ाती सिफाती नाम है ना, तो वो मुनासिब नहीं है। आप इससे अच्छा जो है आप दबाए नहीं, आप जो है कर्ज़ का खाली मसला हो तो आप जो आपका अगर कर्ज़ देना है तो उसका तसव्वुर रखते हुए आप 1001 मरतबा पढ़े और फिर हुक्म लगा दे फ़ला बिन फ़ला मेरा कर्ज़ दे देवे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से मौक्किल आपका काम करना शुरू कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। बस खाली कर्ज़ के लिए आपको ऐसा करना है, कर्ज़ के लिए आपको वज़न चीज़ के नीचे दबाना नहीं है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ों के लिए आप कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।